Namaskar students, welcome to our today's English explanation session. Now today we are going to learn chapter 6, plastic, good or bad. Okay, before that we have already learned new words. I have sent you previous video of new words. Yes, let us first go through that fast. Bought, B-O-U-G-H-T, bought. Carried, C-A-R-R-I-E-D, carried. Plastic, P-L-A-S-T-I-C, plastic. Cupboard, C-U-P-B-O-A-R-D, cupboard. Asked, A-S-K-E-D, asked. L-I-G-H-T, light. B-R-E-E-Z-E, breeze. S-T-U-C-K, stuck. U-G-L-Y, ugly. D-R-A-I-N, drain. Allow, A-L-L-O-W, allow. Easily, E-A-S-I-L-Y, easily. Cannot, C-A-N-N-O-T, cannot. Breathe, B-R-E-A-T-H-E, breathe. Get trapped, G-E-T, get. T-R-A-P-P-E-D, trapped. Get trapped. Burn, B-U-R-N, burn. Smoke, S-M-O-K-E, smoke. Unwell, U-N-W-E-L-L, unwell. Children, C-H-I-L-D-R-E-N, children. Together, T-O-G-E-T-H-E-R, together. Next, again. Again, again, A-G-A-I-N, again. Buckets, B-U-C-K-E-T-S, buckets. B-O-T-T-L-E-S, bottles. C-O-M-B-S, combs. T-O-O-T-H-B-R-U-S-H-E-S, toothbrushes. Cloth bag, clothing. Shopping, S-H-O-P-P-I-N-G, shopping. These new words you have to write down one time in your notebook, English notebook. ये न्यू वर्ड्स आप लोगों को अपने इंग्लिश के नोटबुक में वन टाइम लिखना है. नाउ लेट अस गो थ्रू द मीनिंग्स नाउ. नेक्स्ट, सो फर्स्ट इज लाइट, L-I-G-H-T, लाइट. लाइट का मतलब है भारी नहीं, जो बिल्कुल भारी ना हो, जो हमें इजीली कैरी करने में इजी हो. सो इट्स मीनिंग इज नॉट हैवी, इजी टू कैरी. ठीक है, ये दोनों मीनिंग में से आप कुछ भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, ब्रीज. ब्रीज मतलब एकदम ठंडी हवा, वेरी जेंटल विंड. अगली, अगली मतलब नॉट वेरी गुड टू लुक एट. ठीक है, जो बदसूरत दिखता हो, जो अच्छा नहीं दिखता हो. स्टक, S-T-U-C-K, स्टक मतलब अटक जाना, कहीं पे जैम हो जाना है ना, फंस जाना, तो उसको जैम्ड भी बोलते हैं. ड्रेन, D-R-A-I-N, ड्रेन. अ वे फॉर डर्टी वाटर टू फ्लो आउट. इसका मतलब है ड्रेन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से डर्टी वाटर हम
बाहर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गेट ट्रैप्ड। गेट ट्रैप्ड मतलब किसी के जाल में फंस जाना, बिकम जैम्ड एंड नॉट बी एबल टू गेट अवे, मतलब ऐसे जाल में फंस जाना कि उससे हम निकल ना पाए बिना किसी के मदद से, दैट इज कॉल्ड गेट ट्रैप्ड। नेक्स्ट इज अनवेल। अनवेल मतलब बीमार होना, ठीक नहीं होना। सिक, इट्स मीनिंग इज सिक। नेक्स्ट, पुट देम अवे, मतलब एक जगह को अपनी सही जगह पे रखना, कीप समथिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ओके, सो दिस आर द मीनिंग्स। दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट वन टाइम इन योर इंग्लिश नोटबुक, ये मीनिंग्स और न्यू वर्ड्स जो है वो आपको वन टाइम अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। So our chapter's name is plastic. Chapter number 6, plastic, good or bad. Okay, so let us start now. Now first of all, let us do first warm up. What you have to do in that? Look at these pictures. Put a cross on the things that are made of plastic. Now what you have to do? You have given here pictures. You have to identify the pictures. You have to put cross the pictures which are made up of plastic. Okay, so let us start now. The first is bottles. So yes, bottles are made up of plastic. Next, books. Car is a toy car, so it is also made up of plastic. Then pencils, comb, and then lastly doll. Yes, comb is also made up of plastic. So which are the things in these pictures which are made up of plastic? Bottles, toy car and comb. Now let us start our chapter. One day, Seema and Sameer bought fruits in 2 plastic bags. They carried the bags home and placed them on the table. ठीक है, क्या हुआ? एक बार सीमा और समीर दोनों सिबलिंग्स थे। बॉट मतलब लाए, क्या लाए? फ्रूट्स इन 2 प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, सीमा एंड समीर बॉट फ्रूट्स इन 2 प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, वो दोनों मार्केट से फ्रूट्स लेके आए 2 कैरी बैग में। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड? दे कैरीड द बैग्स होम। फिर उन्होंने वो बैग्स को कैरी किया, उठाया और वो घर लेके आए। द बैग्स होम एंड प्लेस्ड, मतलब उसको, वो प्लास्टिक बैग्स को जो फ्रूट से भरा हुआ था उनको उन्होंने कहाँ रखा? ऑन द टेबल। ठीक है, वहाँ को उन लोगों ने वो बैग्स जो थे जो फ्रूट से भरे हुए थे वो उन लोगों ने कहाँ पे रखे? ऑन द टेबल। इसका मतलब टेबल के ऊपर। Now what happened next? Let us see. Don't leave the plastic bags on the table. Put them in the cupboard, said mother. अब जैसे ही जब उन लोगों ने वो दोनों प्लास्टिक बैग्स प्लेस किया टेबल के ऊपर, मतलब रख दिया, तो तुरंत ही मम्मा आके बोली, डोंट लीव द प्लास्टिक बैग्स ऑन द टेबल, मतलब उन प्लास्टिक बैग्स को आप लोग टेबल पे मत रखो। पुट देम इन द कबर्ड इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑन द टेबल, मतलब टेबल पे रखने के बजाय, टेबल के ऊपर रखने के बजाय आप उन बैग्स को कबर्ड पे रख दो, ऐसा मम्मा ने बोला। किसकी मम्मा ने बोला?
यस, समीर और सीमा की मम्मा ने, ठीक है। वाई माँ आस्क्ड सीमा, ठीक है। जब ऐसा मम्मा ने बोला उनको कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग द बैग्स, फ्रूट बैग्स ऑन द टेबल, यू पुट इट ऑन इन द कबर्ड, तो सीमा को डाउट हुआ। उसने तुरंत ही मम्मा से सवाल किया, क्यों मामा, ऐसा करके। वाई माँ आस्क्ड सीमा, बिकॉज, देन मम्मा रिप्लाइड फॉर दैट, मम्मा ने रिप्लाई किया, बिकॉज प्लास्टिक बैग्स आर लाइट एंड दे कैन फ्लाई अवे इन द ब्रीज। मतलब मम्मा ने उस चीज़ के लिए, उस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर किया, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं, प्लास्टिक बैग्स आर लाइट एंड दे कैन फ्लाई अवे इन द ब्रीज, और वो हवा में उड़ सकते हैं। हवा में उड़ के वो क्या हो सकते हैं, दे कैन गेट स्टक इन ट्रीज एंड लुक अगली, सेड समीर। उतनी देर में समीर ने उसको वापस रिप्लाई किया कि ये जो प्लास्टिक बैग्स है वो उड़ने के बाद वो स्टक हो सकते हैं ट्रीज़ के ऊपर और वो गंदा दिखते हैं, इसकी वजह से समीर ने रिप्लाई किया। देन उसके बाद क्या हुआ, मदर स्माइल्ड, क्या किया मदर ने, स्माइल किया, मदर को हंसी आई। यू आर राइट समीर, व्हेन प्लास्टिक बैग्स fall near plants, they do not let air and water reach the roots, ठीक है। फिर मम्मा ने समझाया कि प्लास्टिक बैग को ऐसे ही छोड़ने से वो हवा में उड़ के ट्रीज में स्टक हो सकते हैं, फिर वो प्लांट्स के आजू बाजू गिर के वो ऐसे मतलब ज़मीन में स्टक कर देंगे कि प्लांट्स के रूट्स में सही मात्रा में जो उनको एयर या वाटर मिलनी चाहिए वो उसको बंद कर देते हैं। प्लास्टिक बैग की वजह से वो नहीं पहुंच पाते हैं रूट्स तक। तो अगर किसी भी प्लांट के रूट्स तक सही मात्रा में एयर या फिर वाटर नहीं पहुंचा जाए तो वो क्या होता है उससे, what happens students, if sufficient amount of water and air is not reached to the roots, the plant will get die, क्योंकि roots जो होते हैं वो plants के main part होते हैं जिनके ज़रिए plants को nutrients मिलते हैं। सो अगर उनको हवा या पानी नहीं मिला तो वो मर सकते हैं। then the plants do not then what will happen, then the plants do not grow well and they die। देखा मैंने बताया ना कि अगर सही मात्रा में वाटर या फिर एयर रूट्स तक न पहुँचे तो वो प्लांट सही से ग्रो नहीं होते हैं और वो मर जाते हैं। समटाइम्स एनिमल्स ईट द प्लास्टिक एंड बिकम सिक। कई बार क्या होता है, एनिमल्स भी क्या करते हैं, फूड को खाने के लिए, प्लास्टिक के अंदर के फूड को खाने के लिए वो प्लास्टिक को भी उसके साथ खा जाते हैं। बिकॉज एनिमल्स तो बेचारे उनको पता नहीं होता है कि प्लास्टिक सही है खाना कि नहीं है ना। तो अगर ये प्लास्टिक बैग सोचो अगर एनिमल्स ने खा लिया और उनके पेट के अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा, दे माइट डाई ऑल्सो, है ना। उसकी वजह से वो मर भी सकते हैं और बीमार भी हो सकते हैं। तो शैल वी थ्रो देम इनटू द ड्रेन, आस्क्ड सीमा। फिर सीमा ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मम्मी क्या हम इन प्लास्टिक बैग्स को हम ड्रेन कर सकते हैं। इसका मतलब ड्रेन मतलब कहीं पे भी जहाँ से हमारे बाथरूम में से या फिर टॉयलेट में से जो ड्रेन वाटर, डर्टी वाटर जाते हैं वहाँ पे हम फ्लश आउट कर सकते हैं, ऐसा करके सीमा ने मम्मा को पूछा। देन फॉर दैट व्हाट मम्मा अगेन रिप्लाइड, मम्मा ने बोला ओ नो, प्लास्टिक बैग्स डोंट अलाउ द वाटर टू फ्लो इजीली। ठीक है,
वहाँ पे भी हमें प्लास्टिक को नहीं थ्रो करना चाहिए। कहाँ पे? ड्रेन नहीं करना चाहिए, किसी भी पाइप में या फिर टॉयलेट के पॉट में हमें नहीं डालना चाहिए। उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो चोकअप हो जाते हैं पाइप, और हमारा जो ड्रेन वाटर गंदा पानी होता है उसे जाने के रास्ते में वो स्टक हो जाते हैं, जैम हो जाते हैं। तो गंदा पानी नहीं निकले तो क्या होगा, वो सब गंदा पानी वापस घर के अंदर आ जाएगा, है ना। तो वो घर का वो ना हो, इसीलिए हमें उनको ड्रेन भी नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट, फिश एंड अदर एनिमल्स इन द वाटर कैन नॉट ब्रीथ when there are many plastic bags in the rivers and lakes। ठीक है, जब हम अगर प्लास्टिक बैग्स को कभी कभी हम रिवर्स के वहाँ पे जाते हैं, सी में जाते हैं, बीचेस में जाते हैं घूमने के लिए, हम क्या करते हैं, कुछ भी पैकेट फूड खाया और वहीं पे हम उसे छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। इट शुड नॉट बी डन एट ऑल। हमें हमारे सराउंडिंग्स, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए वहाँ कहीं अगर डस्टबिन है तो हमें उसमें ही उन प्लास्टिक बैग्स को डंप करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, वो सारे प्लास्टिक बैग्स क्योंकि ये प्लास्टिक बैग्स रिवर्स में भी जाके जब वो उड़ के रिवर्स के अंदर जाते हैं तो फिश को भी जो उसके अंदर रहते हैं वाटर के अंदर, उनको भी ब्रीथ करने में और लीव करने में बहुत ट्रबल होती है। So we should not throw plastic bags over there also। ठीक है। Next, sometimes these animals get trapped in them। देखा, मैंने बोला ना कि वहाँ पे रिवर के आजू बाजू में भी हमें वो थ्रो करने से क्या होता है, ये सब रिवर के अंदर जाके ये सारे एनिमल्स जो है उस प्लास्टिक बैग्स में फंस जाते हैं और बाहर न निकलने की वजह से वो मर भी सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स ऑल्सो मेक द वाटर डर्टी, सेड मदर। मतलब प्लास्टिक बैग्स जो है वो पानी को गंदा भी करते हैं। देन लेट्स बर्न देम, सेड समीर। ठीक है, तो फिर समीर ने क्या बोला कि चलो अगर हमें फेंकना नहीं है, थ्रो नहीं करना है, देन लेट्स बर्न देम। ठीक है, उसको हम बर्न कर देते हैं, मतलब जला देते हैं। तो फिर नेक्स्ट मम्मा ने क्या रिप्लाई किया, वी शुड नेवर बर्न प्लास्टिक। ठीक है, मम्मा ने उसके लिए भी डिनाई किया, मना किया कि वी शुड नेवर बर्न प्लास्टिक। हमें बर्न भी प्लास्टिक को नहीं करना चाहिए। वो करने से क्या होता है, व्हेन वी बर्न प्लास्टिक द एयर इज़ फिल्ड विथ ब्लैक स्मोक। ठीक है, जलाने से क्या होता है, हमारा जो एयर होता है वो पूरा पोल्यूट होके, और जो प्लास्टिक बर्न करने से ब्लैक स्मोक निकलता है वो हमारे पूरे एयर को पोल्यूट कर देता है। अगर उस एयर को, पोल्यूटेड एयर को अगर हम ब्रीथ करते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। It is not safe to breathe this air because it will make us ill. It will make us feel unwell। देखा, मैंने बोला ना कि अगर हमें प्लास्टिक बर्न करने से इस तरह के, you can see this picture, see when plastic are burnt this type of black smoke will release from that by burning plastics, है ना। प्लास्टिक बर्न करने से इस तरीके का ब्लैक स्मोक निकलता है। वो ब्लैक स्मोक अगर एयर के साथ मिल जाए और वो पोल्यूट हो जाए, वो पोल्यूटेड एयर अगर हम ब्रीथ करते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं उससे। ठीक है, सो व्हाट कैन वी डू विथ दिस प्लास्टिक बैग्स माँ? नेक्स्ट, दोनों बच्चों ने आस्क द चिल्ड्रन टुगेदर। दोनों बच्चों ने अपने मम्मा से वापस सवाल किया। तो अब मम्मा ने पहले क्या बोला था कि उसको कहीं पर भी डंप नहीं करना है, फेंकना नहीं है, इधर इट इज़ ड्रेन में हो या फिर बाहर हो, कहीं पर भी उसको फेंकना नहीं है। तो अब दोनों बच्चों ने पूछा कि तो फिर बर्न भी नहीं करना है, तो अब क्या करना है? बच्चों ने पूछा, वी शुड यूज़ देम
अगेन एंड अगेन सेड मदर। मम्मा ने बोला इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट और बर्निंग इट, इसके बजाय कि हम उसे फेंकें या फिर जलाएं, हमें उस प्लास्टिक बैग्स को हमेशा यूज़ करते रहना है, रीयूज़ करते रहना है। हर एक चीज़ के लिए हमने यूज़ कर लिया, उसको प्रिजर्व करके रखा, वापस दूसरी चीज़ों के लिए हमें उसे यूज़ करते रहना है। इससे क्या होगा, बाय यूजिंग अगेन एंड अगेन दिस प्लास्टिक्स विच वी आर हैविंग, उससे क्या होगा कि प्लास्टिक जो है कंजम्पशन उसका कम होगा। इंस्टेड ऑफ कैरिंग ईच एंड एवरी थिंग्स इन द प्लास्टिक बैग्स फॉर एवरी टाइम, इसके बजाय कि हम हर चीज़ को हर बार अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में, नए नए प्लास्टिक बैग्स में हम लेके आए, बजाय इसके कि हमारे जो प्लास्टिक अवेलेबल है उसी को हम हर जगह पे कैरी करके हम चीज़ें अगर घर पे लेके आए तो उसका यूसेज धीरे धीरे जो है वो कम होता जाएगा। तो अगर हमने यूज़ करना प्लास्टिक को कम कर दिया तो क्या होगा, फिर प्रोडक्शन भी कम हो जाएंगे, मतलब प्लास्टिक बनने धीरे धीरे कम होने लगेंगे, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम सब ये चीज़ करने लगेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लास्टिक फिर बनना बंद हो जाएगा, तब जाके हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बट यू जस्ट सेड प्लास्टिक बैग्स आर बैड, सेड समीर। ठीक है, तो समीर ने मम्मा से पूछा कि मम्मा आपने तो अभी हमसे कहा कि प्लास्टिक बैग्स जो है वो बैड है। तो अब मम्मा ने क्या रिप्लाई किया, नॉट ऑलवेज, मतलब हमेशा प्लास्टिक गलत नहीं है। मैंने जैसे बताया था प्लास्टिक जो चीज़ है वो कई चीज़ों के लिए अच्छी भी है और वो गुड भी है, वो हर तरीके से बैड नहीं है। पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग और वेस्टिंग इट इन दी डिफरेंट, अलग अलग तरीक़ों से उसको वेस्ट करने के बजाय अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज़ गुड। प्लास्टिक बैग्स कैन ऑल्सो बी यूज़फुल। देखा, प्लास्टिक बैग्स यूज़फुल भी है जितना वो बैड है। वी यूज़ थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक एवरी डे, मतलब हम हर दिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे घर पे जो हम प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बकेट्स, बॉटल्स, कॉम्स, टूथब्रशेस एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्लास्टिक से बनी हुई यूज़ करते हैं हमारे घर के अंदर हर रोज़ हमारे डेली लाइफ में। मम्मा ने कितने सारे एग्जांपल्स दिए है ना, बकेट्स है, बॉटल्स है, ये सारी चीज़ें हम घर पे यूज़ करते हैं ना। बट वी मस्ट बी केयरफुल हाउ वी यूज़ देम एंड हाउ वी पुट देम अवे, सेड मदर। ठीक है, हम ये सब चीज़ें यूज़ तो करते हैं पर हमें ये पता होना चाहिए कि इन चीज़ों को हमें कैसे अच्छे से केयरफुली उसे यूज़ करना है और उसे कैसे हमें संभाल के रखना है। नाउ आई नो वाई यू ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ बैग व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, सेड सीमा। तो अब सीमा ने क्या बोला, अब मुझे पता चला मम्मा कि आप जब शॉपिंग हम जाते हैं तो आप हर बार क्यों क्लॉथ बैग कैरी करते हो। थैंक यू माँ फॉर टेलिंग अस अबाउट प्लास्टिक, सेड समीर। समीर ने अपने मम्मा को थैंक यू बोलते हुए ये कहा कि थैंक यू मम्मा हमें ये नॉलेज देने के लिए कि प्लास्टिक किन तरीक़ों से अच्छा भी है और किन तरीक़ों से बैड भी है। So I hope you also might have understood, like Sameer and Seema in this chapter, from this chapter, that plastic are some ways in good and it is useful if we use it very carefully and very, मतलब अच्छे से अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। Okay, now let us meet in our next video with our exercise portion. Until then, everyone stay home, stay safe, do take care of yourself students. Namaskar, have a good day.